विजू सर मैडम मैडम जी थैंक यू आपका चलिए अरे वाह सबका करने के बाद Honorable guests, respected family members, invited guests, and beloved friends, how beautiful is this day? It is not only milestone with solution of an honorable member of the universe lives. Thus, dear audience, you many. करेंगे सबका ग्रुप फोटो ले लेते हैं सर एक फोटो प्लीज या थैंक्स Now I request the President Sonia
strategy activate meeting for the order. I request Honorable Secretary Satish Jethwani to welcome our guest of honor Dilip Ji Raju. लक्ष्य ना हो आंखों से ओझल, लक्ष्य ना हो आंखों से ओझल, वर्तमान से लेके प्रेरणा करे, नए प्रयास न करे। अपने लक्ष्य को पाने हेतु समर्पित कर दे अपना तन मन। आओ करे नई रोशनी, आओ करे नई रोशनी, करे मिलकर दीप प्रज्वलित, करे मिलकर दीप प्रज्वलित। I request all the dignitaries from the dais to please light up the lamp. विश्वास की लौ सदा जला के रखना, विश्वास की लौ सदा जला के रखना, देही अंधेरों में रास्ता दिया बंद, देही अंधेरों में रास्ता दिया बंद। विश्वास की लौ सदा जला के रखना, देही अंधेरों में रास्ता दिया बंद। माटी का दिया है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख इस समंदर से, सीख इस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। ऐसी सोच और विश्वास से स्वप्निल जी ने रोटरी रॉयल्स की बागडोर संभाली, हमारे समक्ष रखे। Honored guests, friends and fellow Rotarians, a very good evening to all of you, and thank you for joining this evening to celebration. So here we are at the end of my year as a president, and how quickly it has passed, so much faster than my imagination. Being somewhat apprehensive when first asked to be the president, I was reassured by all my friends that I will enjoy the experience. And although unconvinced at that time, I can confidently say that I enjoyed myself and so did my friends. Did you enjoy the year, my friends? For my first year, we set the theme of fellowship, humor and some good work. My intention was to have more of the same, and thanks are due to all for helping maintain the club on an even knee for the future year. I am proud to be the member of this club and particularly proud to have been afforded the honor of being the chartered president. Doing the presidential round, visiting other clubs and sitting next to our Rotarian guests, I have come to appreciate what a real good club we have. Our blend of relaxed formalities
combined with the sense of bonding and purpose, serves us well. Reflecting on the past year, numerous memories spring to my mind. I am not going to try to highlight our accomplishment of this year, as our Secretary Sachin Jethwani has done a great job throughout the year, and he will be doing this for this day also. I will just highlight some moments I especially cherish. We celebrated Friendship Day in August here itself, where all the members present at that time came to the dais and opened their heart and shared what they thought about friendship. We participated in box cricket events. Here our member Narayan Lahori bought tractors, and our club members entered the stadium on tractors. What a spectacular show it was. Rotary Royals was the talk of the town. We did whatever was needed to build a strong bond among our members and family and members. We went to movies. Almost each of the member and their family were present. We had a wonderful family time in Gokul Ashtami, which was a joint project of Royals, East and Star. We took meetings at different locations to make them more enjoyable. We had a casino party at Mehrun Lake. What a fun everybody had. Nobody was ready to leave unless the police van came, as it was almost 11:30 p.m. We celebrated my birthday at Sharad Joshi's farm. We also celebrated Patam Utsav over there. I thank Sharad Joshi for providing us such a wonderful location. Then comes Holi. We celebrated Holi at Jakete Farms. It was one of the most enjoyed events. We enjoyed a lot throughout the year. If I mention all, many of you may approach Vijay for joining Rotary Royals. So I keep this short and conclude with a DJ party on the last day of my tenure at Silver Palace. My thanks to all of you making this happen, and I am mindful that I have just been a person holding mic, as alongside me there were members who toil unceasingly to keep the club moving and whom I am ever grateful. We all know that a good organization is really run by a good secretary, and I have been fortunate to have Sachin Jethwani gently but forcefully steering me into the direction we wanted the club to go in. Incoming President Vijay Lathi was always behind me, guiding and helping me achieve what we did last year. Plan the events, projects and fun parties throughout the year. I thank Rotary Bhagyashree, who added glitter to our programs, be it the businesses, as everyone was there to keep the club moving, but constraint of timing is not allowing to do so. I also thank Seema, my better half, who was with me all the time like a shadow. So that's all about what we have done, achieved in my presidential year. I forgot that we received the award for best club, best new club in the district in our very first year, which was from 21st of May to 31st of July. To conclude then, during my first year as the president, we are delighted, not me, we are delighted to be able to make a strong bond amongst our members. Thank you all. Thank you Royals. Thank you for the ride. फ्लोरल वेलकम स्टार्ट करते हैं। कुछ गेस्ट नहीं आए थे, इसलिए पहले स्वप्निल जी से उनको सुना।
On behalf of Rotary Royals, it's our pleasure to extend very cordial welcome to dignitaries, invitees, and fraternity on this lovely event. I request Minal ji to welcome PA Past Association President Rashmi ji Sharma, the better of PDG Rajiv ji Sharma. PDG Dr. Chandrasekhar ji Singh. Joshi to welcome AG Arunjit Nanda Rishi. Deepak Patil, Chhabra to welcome. Now I request Sarajit Joshi to welcome past District Secretary Lakshmikant ji Banyan. Chhabra to welcome President of Rotary Jalgaon Rajesh Ji Vaid and Honor Secretary Girish. Rajesh Ji Vaid and Honor Secretary Girish Ji Kulkarni. Request Sarajit to welcome President of Jalgaon Elite Dr. Pankaj Ji Shah and Honor Secretary Nilesh Ji. Now I request Rotarian Sarajit to welcome President of Rotary Jalgaon Old City, Sunil Ji Advani. Dr. Vaidhi to welcome President of Rotary and Honor Secretary Petan Ji Soni. I request Rotarian Sarajit to welcome President of Rotary Jalgaon West, Sunil. I request the Rotarian President of Jalgaon New Jain, Ishita Ji Doshi, and Honor Secretary Hetal Ji Suratwala. I request to Sweta Ji Goyal to welcome President of Inner Club Jalgaon East, Babita Ji Mandal, and Honor Secretary Kartikeya Ji Saha. I request Seema Ji Jakere to welcome. Now I request Sheetal Ji Mandore to welcome District ISO Preeti Ji Doshi. Family. Sir, ready? I request you, Sudha Ji, to welcome Avinash Ji Lathi and family. I request you, Sudha Ji Kabra, to welcome Akshay Ji Bhaveti and family. गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं जो हमारे विजय भैया और सेक्रेटरी जी को विश करने के लिए आए हैं, तो उनका मैं नाम पढ़ के उनका अभिवादन करती हूँ। रोटेरियन संजय शाह एंड गीता शाह, डॉक्टर प्रताप जी जाधव, श्रीमान पुरुषोत्तम काबरा एंड सुधा जी काबरा, श्रीमान अमित भागदेव, श्रीमान प्रसाद जी कुकरेजा, श्रीमान अमृत भाई पटेल,
डॉक्टर जगमोहन जी एंड सानू जी छाबड़ा, संजय जी एंड संगीता जी टोटो। एंड अविनाश जी एंड रूपाली जी काबरा, सुलभा जी लड्ढा एंड रोटेरियन राजेश जी एंड नीता जी। To all of you, respected dignitaries on the dais, of the dais. Today I am presenting the Secretary Report of Rotary Jalwa Royals for the year 2021-22. सबका साथ, सबका विकास की सोच को अपनाते हुए हमने अपने क्लब की शुरुआत सबका साथ के साथ की। और जहां सबका साथ होता है वहां सबका विकास होता ही है। सबके साथ की जर्नी हमारे क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट रोटेरियन स्वप्निल जी जाकेटे ने आप सबके साथ में शेयर की। मेडिकल और नॉन मेडिकल में हुए प्रोजेक्ट्स के विकास की जर्नी अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। 21 मई 2021 को हमें क्लब का चार्टर मिला था और ऑलमोस्ट उसके एक महीने बाद 31 जुलाई 2021 को हमने अपना पहला इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था। हमने अपने क्लब का सबसे पहला प्रोजेक्ट भोले बाबा के आशीर्वाद से ओंकारेश्वर मंदिर पे स्विंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन का लिया था, जिसमें हमने 7 स्विंग मशीन्स नीडी पुअर लेडीज को दी थी। प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर थे गोविंद जी वर्मा और चेयरमैन थे शरद भाई जोशी। उसके बाद ऑन 21 जून वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हमने रायसोनी फार्म हाउस पे लिया, जिसमें ऑलमोस्ट 120 प्लस मेंबर्स एंड हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया। It was a joint project with Sun Yoga Group and project sponsor was Rotary Jalwa Royals and project chairman was myself, Sachin Deshpande। हमारे इन्वेस्टिचर के दिन मीन्स ऑन 31 जुलाई पीडीजी रोटेरियन शब्बीर शाकिर सर की प्रेजेंट में हमने लोहान माता मंदिर पे ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लिया था। ऑलमोस्ट 100 ट्रीज वेर प्लांटेड एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वाज रोटरी जलवा रॉयल्स अगेन एंड प्रोजेक्ट चेयरमैन वाज विजय जी राठी। ऑन द सेम डे अगेन पीडीजी शब्बीर सर के हाथों हमने बस स्टैंड पे एक हितकर्णी कक्ष के रिनोवेशन किया, जिसमें हमने हितकर्णी कक्ष में वहाँ मतलब जो हितकर्णी कक्ष था वो ऑलरेडी पूरी तरह से मतलब टूटा फूटा और एक मतलब बिना कोई काम मतलब जो काम में नहीं आने वाला था, इस तरह का एक रूम पड़ा हुआ था, जिसको चेंज करके हमने वहाँ सिटिंग बेंच बैठाई, टोटल उसका सीलिंग चेंज किया, फैन बैठाया, लाइट फिटिंग की, ये सब वहाँ चेंज करके हमने पीडीजी सर के हाथ से उसका लोकार्पण किया। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर अगेन रोटरी जलवा रॉयल्स एंड प्रोजेक्ट चेयरमैन वॉज सुधा भाभी काबरा और उसके बेनिफिशियरी तो अनकाउंटेबल बेनिफिशियरी थे। देन लीलाई बालाश्रम में फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट किया हमने। हमारे एक मेंबर के बच्चे का बर्थडे था, उन्होंने इनिशिएट लिया, स्पॉन्सर थे गोविंद भाई वर्मा और उसके चेयरमैन थे प्रोजेक्ट चेयरमैन दीपक कुमार पाटिल। देन वैक्सीनेशन ड्राइव पीरियड में हमने फर्स्ट
कोविड वैक्सीनेशन का 1 डे कैंप लिया डॉक्टर अपने मेंबर्स के लिए और फैमिली फ्रेंड्स के लिए डॉक्टर भूषण जवर सर के यहाँ। ऑलमोस्ट 110 पीपल्स, उसमें हमारे मेंबर्स प्लस हमारे फैमिली फ्रेंड्स इंक्लूडिंग करके उतने लोगों ने बेनिफिट्स लिया। देन हमारा अगला प्रोजेक्ट था ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर। दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च ऑन 31st July and this was the ongoing project. हमने प्रेसिडेंट का मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस सभी लोगों को प्रोवाइड की थी कि ई वेस्ट जिनका भी अगर निकलता है तो वो आप यहाँ छोड़ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं तो हम आपके यहाँ से लेके जाएंगे। वो ई वेस्ट को बाद में जब एक मिनिमम क्वांटिटी आने के बाद में उसको सेल करके उसको प्रोजेक्ट में उसका जो फंड आएगा, फंड रेज होगा, वो प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्यूरिफायर एट लीलाई बाल आश्रम, जिनके प्रोजेक्ट चेयरमैन, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स थे दीपक कुमार पाटिल एंड प्रोजेक्ट चेयरमैन थे गिरीश जी शिंदे। ऑलमोस्ट हर 4-5 महीने में एक बार हमारे मेंबर दीपक कुमार पाटिल वहाँ उस मशीन का सर्विसिंग एंड पार्ट्स चेंजिंग का काम देखते हैं और ऑनगोइंग रखा है उस प्रोजेक्ट को उन्होंने। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल किट्स एट भोकनी स्कूल। अगेन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वॉज Rotary Jalgaon Royals and chairman was Manish Goyal. Almost 20 बच्चे हैं वहाँ जिनको स्कूल किट में हमने स्कूल बैग, वाटर बैग, मास्क, स्वेटर्स एंड नोटबुक्स प्रोवाइड की। नेक्स्ट वन वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, 1 Nation 1 Day 1 Million ब्लड शुगर चेकअप कैंप। We tested more than 115 people at Mandora Tower at Tower Chowk. 10 to 15 people were found diabetic and they were advised to consult a doctor. Then second dose of vaccination was arranged for members and again a family friends. Airbag to a needy patient. Project sponsors Swapnil ji Jakete and project chairman Vijay ji Lati. Our next project was how to develop a super memory. It's a non-medical project. A seminar was arranged for school and college students at Sambhaji Hall on how to develop a super memory. It was attended by approx 1400 people in 2 sessions to develop a super memory. And our last project was we distribute a nutrition food to cancer patients at Civil Hospital. Project sponsor was Govind Verma. Very good evening to everyone. आज मैं आप सबके सामने शिकायत लेके आया हूँ जिसके बारे में आप सब जानते हैं। फिर बताऊँ क्या? ऐसा कोई करता है, वो भी आउटगोइंग प्रेसिडेंट के साथ है। पर मैं भी पक्का हूँ, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि जिस शख्स का इंट्रोडक्शन करना है उनका नाम है विजय लाठी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि विजय बहुत एनर्जेटिक है, उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ, और ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये बहुत सॉलिड स्टूडेंट रहे स्कूल लाइफ में। आरआर स्कूल में 10th तक पास करने के बाद पास किया है और अभी इसके आगे की और एक डिग्री ले रहे हैं योग में। और चूंकि आप ये जानते हैं कि इनके कपड़ों का और हैंडलूम का काम है, तो फिर वो भी मैं नहीं बताता हूँ। इनर व्हील क्लब की पास्ट
प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल इनरविल की पास्ट ट्रेजरर और डिस्ट्रिक्ट 303 की पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी लाठी इनकी धर्मपत्नी है। आप जानते हैं और मैं नहीं बता रहा हूँ। और जिस आरआर स्कूल में से इन्होंने झंडे गाड़े हैं, इस आरआर स्कूल के विजय जी डायरेक्टर हैं। लाठी परिवार कुल स्वामिनी ट्रस्ट के ये संस्थापक हैं। इन्होंने रोटरी क्लब जलगांव ईस्ट में सेक्रेटरी का पोस्ट निभाया था और उनको बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी मिला था। विजय में बचपन से ही देने की वृत्ति है और इसी हैबिट के चलते हॉस्टल लाइफ में ये जामुन के पेड़ पे टार्जन की तरह चढ़ जाते थे और सारे हॉस्टल के बच्चों को जामुन खिलाते थे। और नहीं जानते, मैंने बता दिया आपको। इन्होंने 2016-17 में रोटरी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और समाज में बदलाव लाने के लिए रोटरी एक बहुत बढ़िया माध्यम है या प्लेटफॉर्म है, ऐसा ये मानते हैं। और उसी सोच के चलते आज ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभाने आए हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ विजय लाठी। वक्त गुजर जाएगा, चंद लम्हों में पद बदल जाएगा। ये कुर्सी होगी जब विजय जी की अमानत अब पास प्रेसिडेंट की कमेटी में होगी स्वप्निल जी आपकी जमानत। तो लीजिए वो घड़ी आ गई जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। Now I request outgoing President Swapnil Ji Jakade to hand over the charge of presidentship to incoming President of Vijay Ji Lathi. मुझे असली गवर्नर होने का हक को मिल रहा है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने। मैं विजय लाठी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि रोटरी जलगांव रॉयल्स के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूँगा और मैं अपनी पूरी क्षमता से जिला प्रांतपाल डॉक्टर आनंद झुंझुनवाला और रोटरी इंटरनेशनल का समर्थन करूँगा और मैं इस क्लब के संविधान और उपनियम को बनाए रखूँगा। मैं आगे बोलता हूँ, एक लाइन और बोलो। मैं रोटरी फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दिलवाने की कोशिश करूँगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, ऐसा मानते हैं हमारे प्रेसिडेंट विजय जी लाठी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आगामी वर्ष की परिकल्पना रखें। सभी को रोटरी प्रणाम। भगवान महेश और कुलदेवी लोहान माता जी को वंदन करते हुए तथा पूर्वजों को नमन करते हुए मैं अपने स्वीकृति अभिभाषण की शुरुआत करता हूँ। पीडी जी, आदरणीय राजीव जी, सम्मानीय अतिथि असिस्टेंट गवर्नर दिलीप जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, इनरविल के पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, all Rotary and Innerville Club President and Secretaries, invited guests, family members, friends, and my dear club members, aunts and annets. Namaste, good evening to all. मन में कई सपने और कुछ करने की तमन्ना लिए मैंने वर्ष 2012-13 में रोटरी में प्रवेश किया था। रोटरी का यह प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस सफ़र में मैं हर मोड़ पर आप सभी इस सफ़र में मुझे हर मोड़ पर आप सभी का साथ मिलता गया और आज आप सभी को साक्षी रखते हुए मैं रोटरी जलगांव रॉयल्स के द्वितीय अध्यक्ष के पद का स्वीकार करता हूँ। आपके सहयोग से इस पद की गरिमा को कायम रखने का प्रयास करूँगा। इस वर्ष कुछ नए अंदाज से कार्य करने का सपना मैंने देखा है। वर्ष के प्रोजेक्ट रोटरी के 7 एवेन्यूज और डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अनुरूप करने का मानस है। चंद प्रोजेक्ट्स की जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुकन्या योजना फॉर नीडी गर्ल्स, कैंसर वैक्सीनेशन फॉर रोटरी एंड्स एंड एनेट्स, कैंसर अवेयरनेस इन रूरल वुमेन्स, हेल्थ चेकअप एट एडॉप्टेड स्कूल, बाइसिकल डोनेशन टू नीडी गर्ल्स। इस प्रोजेक्ट से आज हम हमारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मोकलेस स्टोव एंड स्विंग मशीन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ बस स्टैंड, यह हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा। ब्लड डोनेशन कैंप, फार्मर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, यह डिस्ट्रिक्ट के थ्रस्ट एरिया के प्रोजेक्ट रहेंगे। चेक डैम आदि ऐसे छोटे बड़े काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम आने वाले वर्ष में सभी के सहयोग से करने वाले हैं। DTTS नासिक में हमने जलगांव के और अन्य क्लबों के साथ में 2 MOU भी साइन किए हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ पिंपराला वैकुंठ धाम और स्क्विंट एंड कैटरेक्ट सर्जरीज का। जलगांव के सभी क्लबों के साथ एक प्रोजेक्ट करने का हमने सोचा है। मैं अपने इनक्लेव चेयर नंदू भाई से यह प्रोजेक्ट इनक्लेव प्रोजेक्ट करके शामिल करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्रोजेक्ट रहेगा ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी। इसमें हम लोग सभी क्लब मेंबर्स मिलके कॉलोनी में जहाँ 50-100 मकान है वहाँ उनको ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी का मतलब है कि वहीं के जो घर का वेस्ट निकलता है वो वही कंपोस्ट खत बनाने के लिए हम लोग उनको जागरूक करेंगे और वही एरिया में उनके पेड़ और उसको वो कंपोस्ट खत का यूटिलाइज होगा। ऐसा सभी क्लब के साथ में ये प्रोजेक्ट लेने का हमने सोचा है। फ्रेंड्स, हमारे क्लब का यह दूसरा वर्ष है। इस वर्ष भी हमारा फैमिली फेलोशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और सभी क्लब मेंबर्स के साथ एंड्स और एनेट्स की भी बॉन्डिंग बढ़ाने का प्रयास रहेगा। इस वर्ष में एक रोटरी क्लब, एक इंटरेक्ट क्लब और एक रोटा किड्स क्लब भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। साथ में एक RCC भी हम शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष की सभी योजनाओं में हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आनंद जी झुंझुनवाला, सभी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का मार्गदर्शन मिल रहा है तथा क्लब के सभी सदस्यों का सक्रिय सहभाग भी मिल रहा है। हमने इस वर्ष क्लब मेंबर्स को एक थीम दी है, इन्वॉल्व। अपने व्यावसायिक कार्य के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाने का यह रोटरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। मैं सभी क्लब मेंबर्स, एंड्स, एनेट्स को आग्रह करूंगा, आप सभी क्लब की गतिविधियों में इन्वॉल्व होकर अपना योगदान दें और मुझे अपने सभी दोस्तों पर पूरा विश्वास है। शब्दों की रफ्तार को यही रोकते हुए अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जुनून है कुछ कर दिखाने का, जुनून है कुछ कर दिखाने का, जुनून है सपनों को पार लगाने का। आत्मविश्वास और साथियों के साथ से प्रयास है अपेक्षाओं पर खरा उतरने का, प्रयास है अपेक्षाओं पर खरा उतरने का। धन्यवाद। कोई भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी पूरा वर्क कभी भी अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे ज़रूरी है उनकी सेना, उनकी टीम। तो हम अभी उनकी टीम को बुलाने जा रहे हैं।
मैं Immediate past president and director club administration, Swapnil Ji Jakete. Honorable Secretary Bhojwani. Treasurer Anil Advani. Management Dinesh Shinde. Joint Secretary Public Relations and Digital Program Publicity and Public Relations of Rotarian Manish Patrikar. Director Membership Sector. Non-medical community service medical Dr. Jaideep Ji Chhabra. Director of Community. Director Rotary Foundation Global Grant Rotarian Deepak Kumar Patil. Fellowship Chair Rotarian Bhavesh Shah. Vocational Service Chair Rotarian Vipul Advani. Program Chair and Literacy Rotarian Dr. Rohit Jain. Editor and Account Rotarian Prashant Agarwal. Sports Chair Rotarian Nitin Mandhan. Leading Chair in Village Adoption Narayani Rathi. Ahori. Farmer Welfare Chair Rotarian Sunil Mare. Ranji Joshi. Rotarian Ravindra Ji Nathani. Ravi Ji Nathani. Festival and Picnic Chair Bhagyashri Pancharia. Director Rotarian Manish Goyal. And Picnic Chair Bhagyashri Panchania. Anniversary Chair Shilpi Mandhan. First Lady Rotarian Aunt Chair Dinesh Ji Lathi. Okay. अभी यहाँ नए जो क्लब के डायरेक्टर्स हैं और पदाधिकारी हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है। मैं बोलूँगा तब आप सभी ने अपना नाम बोलना है। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रोटरी जलगांव रॉयल्स में अपने कार्यकाल के कर्तव्यों को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करूंगा। मैं अध्यक्ष विजय जी लाठी का समर्थन करूंगा और हमारे क्लब के संविधान और उपनियमों का पालन करूंगा। धन्यवाद। Virtue and simplicity, whom we chase to be Assistant Governor Dilip Ji Kadu. आदरणीय मंच और उपस्थित सभी मित्रों को समय को देखते हुए मैं बहुत ही संक्षिप्त में आनंद जी झुंझुनवाला जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनका संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले तो मैं इस क्लब को और पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूं क्योंकि 1 वर्ष ही पुराना क्लब और जैसे यहाँ प्रोजेक्ट बताए गए इतने सुंदर और इतने बढ़िया प्रोजेक्ट
और इतनी क्वांटिटी में प्रोजेक्ट लिए, सचमुच आप धन्यवाद के पात्र हैं। सभी एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर झुनझुनवाला ने आपके लिए एक शुभ संदेश भेजा है, वो इस प्रकार। दोस्तों, आप सभी का रोटरी नए वर्ष 2022-23 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत वर्ष के प्रेसिडेंट रोटेरियन स्वप्निल एवं सेक्रेटरी रोटेरियन सचिन व पूरी टीम को किए गए सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट रोटेरियन विजय, सेक्रेटरी रोटेरियन जितेंद्र व पूरी टीम 22-23 की मैं आज पद ग्रहण की और इस मंगलमय कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम सभी उत्साह से तथा नई कल्पनाओं के साथ नए वर्ष में पदार्पण करने जा रहे हैं। रोटरी का प्रत्येक वर्ष अपने साथ नई चुनौतियां और नए अवसर लाता है। यही वह समय है जब आप अपनी ऊर्जा व नए विचारों को आने वाले लीडर्स के साथ जोड़े। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन प्रत्येक सदस्यों का जिसने अपनी लगन व समय देकर पूरे वर्ष की रूपरेखा तैयार की है ताकि यह वर्ष सुचारू रूप से चल सके। रोटरी इंटरनेशनल एक उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष की आरआई प्रेसिडेंट रोटरी इमेजिन रोटरी वह चाहती है कि हर रोटेरियन बड़ा सपना देखे और उसको साकार करे। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को क्लब में जोड़कर इस वर्ष को सुनहरा बनाए। मैं मानता हूं कि हर क्लब अपने आप में अलग है और उसकी अपनी एक पहचान है। मुझे उम्मीद है यह अनोखापन ही आपको क्लब की शान बढ़ाने में सहयोग देगा। क्लब में कई विविध प्रकल्प व गतिविधियां साल भर चलती हैं। क्लब के हर सदस्य से निवेदन है कि वे अपनी रुचि अनुसार रोटरी के कार्य से जुड़े और अपने रोटरी अनुभव को सुदृढ़ बनाएं। मेरा मानना है कि जो दिखता है उस पर विश्वास होता है। तो ऐसे ही अच्छे कार्य करते समय आपको मित्रगण व परिवारगण जो रोटरी से अपरिचित है उन्हें आमंत्रण दीजिए व रोटरी के कार्यों से अवगत कराइए। निश्चित ही इससे रोटरी का सक्रिय प्रभाव उन पर पड़ेगा। इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट ने इन प्रकल्पों पर ज्यादा से ज्यादा काम करना है और वह यह है रक्तदान, वर्षा जल संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल विभाजन प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, किसान कल्याण, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट लेना है। मुझे विश्वास है आप इन क्षेत्रों में जी जान से मेहनत करेंगे। हर क्लब में सदस्य बढ़ाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम क्लब के हर सदस्यों को कार्य में सम्मिलित करें। मैं क्लब लीडर से गुजारिश करूंगा कि वे ऐसी योजना तैयार करें कि क्लब के हर सदस्य को साल में कम से कम एक बार एक प्रोजेक्ट में समायोजित होने का मौका मिले। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो युवा पीढ़ी जैसे रोट्रैक, इंट्रैक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी है। उनके उत्साह, उनका जोश, उनकी ऊर्जा से क्लब की गतिविधियों में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए रोट्रैक तथा इंट्रैक को बढ़ावा देते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और रोटरी के प्रभाव का विस्तार करते हैं। साथ ही नई टेक्नोलॉजी का हमारे कार्यों में समावेश करते हैं। दुनिया को पहले से ही कहीं ज्यादा आज रोटरी की आवश्यकता है। मैं सभी रोटरी के काम और सेवाओं को जमीनी स्तर पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का आग्रह करता हूं। यह पूरा रोटरी वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो। आप निरंतर सेवा कार्य करते रहें, अपने सपनों को साकार करें, यही मंगल कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक अद्भुत रोटरी की कल्पना करें। इमेजिन रोटरी। जल्द ही मैं आपसे मिलने के लिए
आने वाला हूं और उस लिए मैं पुनः एक बार सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर आनंद झुंझुनवाला। थैंक यू। Good evening, ladies and gentlemen. I am very happy and honored to introduce our today's chief guest of the ceremony, our very own past district governor, Rotarian Rajiv Sharma. A dashing personality, having a O-positive blood group and a B-positive attitude. Rotarian Rajiv Sharma is a second-generation Rotarian, joining Rotary at an early age in 1993. Sir is graduate from Delhi University. Sir holds 2 postgraduate degrees, one in pharmaceutical science from King's College London and other in political science from Mumbai University. Rajiv served as a governor of Rotary District 3030 and he also served in News Trust. Sir served as an Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator of Zone 6. He also served as a district trainer of Rotary District 3030. Currently, he is serving as the chairman of membership satisfaction team of Bosch Rotary Action Group for the year 2021-24. He is also zonal ambassador of Rotary Task Force of Zone 6 for the year 2020-23. Sir has spearheaded several Rotary Foundation grant projects costing more than $10 million that have provided 2 mammography buses, blood bank, dialysis center, pediatric ICU, cath lab, happy schools and many more. Friends, I am very happy to let you know that from 1st July 2022, Sir is serving as an endowment and major gift advisor for the year 2022-25. His self-dedication and perseverance has led him to achieve many awards from the Rotary International. Rajiv is a recipient of Club Builder Award, Avenues of Service Citation Award, the Rotary Foundation Citation for Meritorious Service Award, the highest recognition of the Rotary Foundation in Distinguished Service Award, and Rotary International's highest honor to be bestowed on him, Service Above Self Award. Rajiv and his daughter, Rotarian Dr. Rashmi Sharma, together support the Rotary Foundation. Both are members of Arts Clubs Society. Both are benefactors and members of all this society. They have instituted 2 named endowment fund of $25,000 each. Friends, Sir is not only a super major donor to the Rotary Foundation, but Rajiv is also super major donor of blood too. Till date, he has donated blood 112 times. May I request everyone to give him a quick round of applause. Friends, today we have clubs in India. She also served as a tradition and Constitution Committee Chair of Association of Inner Clubs in India. Rajiv ji and Rashmi ji are blessed with a beautiful daughter, Dr. Mahima, who has been an interactor and also a Rotary exchange student to Germany. A complete Rotary family. Ladies and gentlemen, please welcome again for today's dynamic, magnetic, evergreen, handsome chief guest of the ceremony, Rotarian Rajiv Ji Sharma. इंट्रोडक्शन मेरा सही ढंग से नहीं दे देते, मैं चीफ गेस्ट का भाषण सही ढंग से नहीं दे देता, हम दोनों यही काम हर साल करते रहेंगे, ठीक है? ये दोनों मेरा नाम जब से ले रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है वो श्री 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 8001 बाबा राजीव शर्मा वाला हाल हो रहा है। EMGA PDG, कितनों की समझ में आया EMGA PDG क्या होता है? रोटरी नॉलेज इसीलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि सब रोटेरियंस को प्रॉपरली रोटरी नॉलेज रेगुलर रोटरी मीटिंग में दिया जाए। मैंने आज तक अभी इस साल में करीब 7-8 इंस्टॉलेशंस इंडिया भर में किए।
10 किए होंगे, उसमें से 6 क्लब जिनमें मैंने इंस्टॉलेशन किए उनके नाम हैं इंदौर रॉयल्स, भुसावल रॉयल्स, बिलासपुर रॉयल्स, रायपुर रॉयल्स और जलगांव रॉयल्स। तो एक रॉयल की कीमत रॉयल ही पहचान सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मुझे बुलाया, इस बात का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच में आके, क्योंकि मैं बनाने में क्लब मदद लक्ष्मीकांत जी ने की थी, लेकिन ऑफिशियली या फिगर हेड क्लब एडवाइज़र क्लब का मैं था, है कि नहीं। और ये क्लब भले ही 2 साल पुराना हो, यहाँ पे सारे मंझे हुए रोटेरियंस हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, इसीलिए काम पहले ही साल से एकदम किक स्टार्ट होके भागते दौड़ते इन लोग पूरा कर रहे हैं। और इस बात की मैं इन दोनों आउटगोइंग प्रेसिडेंट जैकेटे जी को और इनकमिंग प्रेसिडेंट विजय जी को, दोनों को बधाई भी देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इतना अच्छा काम जलगांव में रोटरी के लिए कर रहे हैं और रोटरी के द्वारा समाज के लिए कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का वर्णन किसी ने किया था, आप बोले थे सबका साथ सबका विकास हमारे प्रथम नागरिक कहिए या प्रथम सेवक वो अपने आप को कहते हैं, देते हैं, लेकिन उनके दूसरे स्लोगन से हम लोग डिसएग्री करते हैं। हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। कैसे? सिखिज्म में 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। गुरु ने कहा है कि कीरत करो, नाम जपो और वंद चखो। उसका मतलब होता है कि मेहनत करो, भगवान को याद करो और सबके साथ बांट के खाओ। तो हम बांट के खाते हैं, सबको आज शाम को हम लोग यहाँ खाएंगे और बाकी समय दिन भर समाज को जिनको ज़रूरत हो उनको साथ में लेके हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज यहाँ पे इनर व्हील की बहुत पावरफुल महिलाएं उपस्थित हैं, एक से एक पावरफुल है। 5वीं रो तक बैठी हुई महिलाएं जो हैं, मैं जानता हूँ कितनी पावरफुल इनर व्हील मेंबर्स हैं। वो जैकेटे जी पीछे जाके बैठ गई हैं, यहाँ बैठे बैठे इशारे कर रही थी बेचारे जैकेटे जी को, वो चुपचाप जो बोले वो करते जा रहे थे। अब मेरे लिए ये बैठी हैं, मीनल जी बैठी हैं, उनका काम शुरू हो गया ना। और ये सब मीनल जी की वजह से आई हैं, नहीं तो ये लोग बड़े रेयरली दर्शन देती हैं लोगों को पब्लिक में आके रोटरी के फंक्शंस में। मीनल जी को बहुत बहुत बधाई कि वो ये सबको यहाँ पे एक मंच पे इकट्ठा कर पाई। एंस बोलना अब रोटरी में DEI पॉलिसी में मना हो गया है, क्योंकि अगर आप एंस बोलते हैं तो रोटेरियंस, जो महिला रोटेरियंस हैं, उनके पतियों के साथ आप अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको फिर आप क्या बोलेंगे, अन्ना। अब बेसिकली स्पाउस या पार्टनर शब्द रोटरी में यूज़ होने लगा है कि विजय लाठी जी और उनकी पार्टनर या स्पाउस मीनल लाठी जी हैं। तो इस तरह हम लोगों को अपनी वोकैबलरी रोटरी में चेंज करनी है। विजय जी योगा में वो कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि रोटेरियंस का बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेलोशिप ग्रुप है योगा का, और उसका चीफ जो हैं अपने इंडिया के ही हैं, शशि वर्धवनकर हैं, डिस्ट्रिक्ट 3261 के पास गवर्नर हैं और रायपुर में बेस्ड हैं। उनका बहुत बड़ा योगा ग्रुप है और 3 साल से इंटरनेशनल योगा का दिन से लेके सारे रोटेरियंस को योगा सिखाने वगैरह वगैरह का काम वो करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बतानी थी, क्योंकि जो मैंने ऑब्ज़र्व की अभी के बोलने में। अब मेरा टाइम चालू होता है, 15 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं बता के जाऊँगा। प्रॉब्लम ये हो जाता है जहाँ भी जाऊँ तो इससे मैं बांटा था, इस जेब में वो भाषण है जो मैंने यहीं दिया था, तो उसको यहीं रख देता हूँ। मैंने देखा कहाँ है तो अब इस साइड का निकालता हूँ। ये है, बहुत है, बड़ा है, लेकिन उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे रोटरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इनर व्हील में हम लोग जिस चीज़ पे सबसे कम ध्यान देते हैं वो है दूसरों की समय की इज्जत करना। हम लोग बिल्कुल नहीं करते। आप अगर पिछले 15 दिन में देखेंगे तो 2 शपथ विधि कहिए या इंस्टॉलेशंस अपने देश में हुए, एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का और एक देश की राष्ट्रपति का। हमारे देश के राष्ट्रपति का इंस्टॉलेशन कहिए या पदग्रहण शपथ विधि कहिए, दरबार संसद के जॉइंट पार्लियामेंट के मेन हॉल में
11:15 पे होने वाला था। 11:15 बजे राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के दोनों राष्ट्रपति संसद में पहुंचे, उनका शपथ विधि हुआ। 11:15 बजे तक वो वापस राष्ट्रपति भवन में आई और उनका वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और आउटगोइंग राष्ट्रपति की विदाई हुई। क्लॉकवर्क, 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई और वहाँ देश के सबसे पावरफुल लोग वहाँ बैठे थे। प्रधानमंत्री वहाँ थे, गृह मंत्री वहाँ थे, तीनों सेना अध्यक्ष वहाँ थे, 200 कंट्रीज़ के राष्ट्र क्या कहेंगे एम्बेसडर्स कहिए या कॉमनवेल्थ के हमारे एम्बेसडर्स जो होते हैं वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन कहीं भी 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई। अपने यहाँ क्यों ऐसा होता? क्या हम लोग उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? हम लोग क्यों नहीं, विजय लाठी जी ने पत्रिका में 7 बजे का टाइम दिया है तो 6:45 बजे यहाँ सब अपनी जगह पे बैठ जाएं और ठीक 7 बजे कार्यक्रम चालू हो जाए। और मैं सिर्फ रॉयल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने शुरू में ये बोला, हम सब रोटेरियंस और इनर व्हील मेंबर्स समय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हमारे समय की कीमत अपने आप को हो ना हो, हमने दूसरे की कीमत का, समय की कीमत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो उनके लिए बहुत कीमती है, आप लोग उसको मानो या ना मानो। ये हर रोटरी फोरम में मैं जाके बोलता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क किसी का समझ में नहीं आया कि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़। और रोटरी में भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप चले जाइए, रोटरी इंटरनेशनल के या रोटरी इंडिया के जितने भी फंक्शंस होते हैं एग्जैक्ट डॉट पे चालू होते हैं, डॉट पे ख़त्म होते हैं। ट्रेनिंग इवेंट्स अगर 11 बजे चालू होने वाले हैं तो 11:01 पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई उसमें अंदर नहीं आ सकता। रश्मि, वेंकटेश। और दूसरी चीज़ मैंने जो आज महसूस की या देखी वो थी इंस्टॉलेशन का एजेंडा। मुझे विजय लाठी जी ने पहले भेजा तो मैंने उनसे पूछा ये एजेंडा किसने बनाया, तो वो बोले पुराने अपने पीछे के 7 रोटरी क्लब ने जलगांव के इसी तरह से इंस्टॉलेशन किया। तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं वहीं टोक देता। और प्रॉब्लम ये था, आपने मुख्यमंत्री का शपथ विधि देखा है ना, मुख्यमंत्री का शपथ विधि पहले होता है और फिर उसके मंत्रिमंडल का शपथ विधि होता है। यानी मुख्यमंत्री का इंस्टॉलेशन पहले होता है, नहीं तो तब तक वो मंत्रिमंडल का कोई महत्व नहीं। अपने यहाँ पे एजेंडा जो बना था, पहले सार्जेंट एट आर्म्स का इंस्टॉलेशन हो रहा था, फिर सेक्रेटरी का इंस्टॉलेशन हो रहा था, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंस्टॉलेशन हो रहा था और फिर प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन होता। जब तक प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन नहीं होगा उसके मंत्रिमंडल का इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे? तो पहले जिनने अभी इंस्टॉलेशन पिछले 1 महीने में किया हो वो अगले साल जब इंस्टॉलेशन करें तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट का पद ग्रहण पहले होगा, बाकी मंत्रिमंडल बाद में आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे जो नज़र आई मैंने बताई। प्रेसिडेंट्स के लिए मैं कहूँगा, प्रेसिडेंट्स आप अपने क्लब के पोस्टर बॉय हो, आपकी पहचान में आपके क्लब की पहचान है और आपका क्लब ताकतवर या कमज़ोर नहीं है, आप ताकतवर या कमज़ोर हो। आप जितनी ज़्यादा ताकत लगाओगे क्लब उतना ज़्यादा ताकतवर होगा, जितनी ज़्यादा ढील दोगे, जितनी कमज़ोरियाँ आप दिखाओगे वो क्लब के फंक्शनिंग में रिफ्लेक्ट होगा। तो क्लब को मत बोलिए कि मेरा क्लब कमज़ोर है, मेरे मेंबर्स मेरा साथ नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। लीडरशिप अब आपके हाथ में है, अगले 30 जून तक आपको लीडरशिप की ताकत दिखानी है। पावर जब आता है उसके बाद पता चलता है कि आदमी कैसा है। पावर नहीं है ये, लेकिन इन द सेंस कि ये पावर आपके पास सत्ता आ गई ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास इतना मॉरल अधिकार आ गया है कि यहाँ बैठे 100 रोटेरियंस को आप कह सकें कि मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है। आप किस तरह उनसे कहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि उसको रिस्पॉन्ड करें। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये प्रेसिडेंट 1 साल बना है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मैं इस साल रोटरी में काम नहीं करूँगा और अगले साल की काम करूँगा क्योंकि मुझे लाठी जी की शक्ल नहीं पसंद। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप रोटेरियन हैं। आपको आज भी काम करना है, कल भी काम करना है, कल भी आपने किया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे भी हमेशा आपको काम करना है। कोई भी प्रेसिडेंट हो, आप एज अ रोटेरियन काम कर रहे हो। विजय लाठी जी के नाम से आज शपथ ली गई, लेकिन वो एज अ प्रेसिडेंट ली गई। प्रेसिडेंट के साथ काम करूँगा, वो शब्द विजय लाठी जी का हटा देना चाहिए था, नाम प्रेसिडेंट के साथ काम करूँगा। विजय लाठी की वफादारी नहीं है, आपकी उस कुर्सी से वफादारी है। तो हर रोटेरियन ने इस बात को ध्यान में रखना है। विजय लाठी के दोस्त बहुत अच्छे से काम करेंगे,
जो उनके प्रिय हैं, जो उनको पसंद करते हैं वो तो करेंगे ही, जो नहीं करते वो भी बहाना नहीं कर सकते कि मैं इनको पसंद नहीं करता इसलिए काम नहीं करूँगा, क्योंकि आप रोटरी के लिए काम कर रहे हैं, विजय लाठी जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बहुत अच्छा लिसनर होना है, वैसा ही आपको सबको होना है। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप अच्छे लीडर हैं। हर रोटेरियन अपने फील्ड में रोटेरियन है, लीडर है, और उसके लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। मैं अगर यहाँ खड़े होकर आज भगवान की दया से कुछ बोल पाता हूँ वो इसलिए है क्योंकि मेरी पढ़ने की आदत है, मेरे में ग्रहण करने की आदत है। जो मेरे पहले जो यहाँ स्पीकर्स खड़े होकर बोलते थे उनको मैं ग्रहण करके अपने अंदर डालता था, तो वो चीज़ मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया होता तो मैं इतना अच्छा कभी नहीं बोल पाता। अपने अंदर वो चीज़ जानी चाहिए, अपने को उसको आत्मसार करना जरूरी है। जब आप ये सब कर पाते हैं तो एक अच्छा लीडर बन पाते हैं। और जब ये इंस्टॉलेशन है तो प्रेसिडेंट्स का रोल क्या होता है? सबसे पहले सीनियर्स को मैनेज करना। अब ये बोलेंगे तो मेरा तो 2 ही साल पुराना क्लब है, मेरे पास सीनियर कहाँ है? लेकिन सर आप बहुत सारे सीनियर लेके आए हो ना दूसरे क्लब से, उनको भी तो मैनेज करना है। सीनियर्स को मैनेज कैसे करोगे? सीनियर्स की बात सुनने की आदत अपने को होनी चाहिए, सही हो या गलत हो, और उनको ना बोलते समय ऐसे ना बोलते आना चाहिए कि उनको भी मज़ा आ जाए कि अरे वाह ये तो बहुत प्यार से ना बोल के गया। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए सीनियर को कि उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरा उल्लंघन करके चला गया। तभी आप सीनियर्स को उनका रिस्पेक्ट पा पाओगे, और क्योंकि जब आप उनका रिस्पेक्ट करोगे, उनके साथ पास्ट प्रेसिडेंट है ये तो चला गया, पीडीजी है ये तो सिर्फ डिनर खाने चला आता है, इस तरह आप नहीं कर सकते। उन लोगों का सुनना, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना, चाहे वो आपके क्लब में हो या ना हो। जलगांव को तो इतना फ़ायदा है, जलगांव तो इतना रिच है, जलगांव इतना ब्लेस्ड है कि इतने सारे सीनियर रोटेरियंस जलगांव में हैं जिनका आप अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक प्रकार के सीनियर रोटेरियन से दूर भागना। अगर आप उससे सलाह मांगने जाओ कि मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, वो कहते हैं आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता, उससे फिर दोबारा उससे मिलने कभी मत जाओ, क्योंकि वो अपने ज़माने से ही बाहर नहीं आया। आज 21वीं सदी में अगर अपने को काम करना है तो हमको 21वीं सदी की सोच रखनी है। हम 20वीं सदी में भी नहीं जा सकते। लोग तो 18 शताब्दी में जाने की सोच रहे हैं और अभी के गलतियों के लिए 1947 को दोष देते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। पास्ट हमारे काम का नहीं है, पास्ट हो गया, पास्ट से सिर्फ सबक लेना है, उसकी गलतियों से सीखना है और आगे वो गलतियां दोबारा नहीं करनी चाहिए। अपनी लाइफ या अपना टेन्योर इतना बड़ा नहीं है कि वो दोबारा गलतियां हम कर सकें, ना ही हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही वो दोबारा गलतियां करने का टाइम हमारे पास है। तो इन चीज़ों को काम ध्यान में रखिए और आगे की सोचिए और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। और भगवान रजनीश ने किसी और संत को रिपीट किया था, लेकिन उनने उसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था हरिबा खेलीबा हरिबा ध्यानम, हसीबा खेलीबा हरिबा ध्यानम। मतलब खेलते खेलते हंसते हंसते जो चीज़ हम करते हैं वही हमारे मेडिटेशन की या हमारी श्रद्धा की या हमारे फेथ का कोर है। अगर हम कोई चीज़ खुशी से नहीं करते हैं तो वो हम ना उसका फल ना हमको मिलता है, ना हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको मिलता है। इसके लिए आपको 4 चीज़ें याद रखनी है कि मेहनत से काम करो, वर्क हार्ड बट स्टे हम्बल, दिखावा मत करो, और आई एम ग्रेट ये अपने मन में रोज़ सुबह उठ के बोलो, आई एम ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जिस दिन ये बोलना चालू किया आई एम ग्रेटर देन अदर्स, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। मैं महान हूँ लेकिन मैं सबसे महान नहीं हूँ। ये 2 चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसा मैं कहता हूँ बचपना अपना नहीं जाना चाहिए, हम हमेशा बच्चे बने रहने चाहिए, लेकिन बचपना नहीं करना चाहिए। आई समझ में बात? वही चीज़ महानता में और महान सबसे महान होने में फ़र्क है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो याद में रखो। और 4 प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछो, हर एक के लिए, हु, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट दिस देन व्हाट। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर और क्या करूँगा, और यहाँ नहीं करूँगा तो फिर कहाँ करूँगा? इफ़ नॉट हियर वेयर, एंड
इफ नॉट नाउ व्हेन, अगर अब नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा? कल करे सो आज कर, अब कल आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गयो तो फिर करेगो कब? सो आज हमको करना है। मैंने एक अपॉर्चुनिटी की कहानी हमेशा सुनाता हूँ, फिर किसी दिन सुनाऊंगा क्योंकि वो टाइम नहीं बच रहा मेरे पास, अब 2-3 मिनट ही और बचे हैं। और रोटरी को बहुत सिंपल रखिए। आज एमओसीज को यहाँ बिठाया गया तो उन लोगों को मेरे एक्रोनिम्स का नाम का मीनिंग मालूम होना चाहिए, और वो जब बोलें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। EMGA का मतलब क्या है? आम रोटेरियंस की अगर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ बैठे नॉन रोटेरियंस की समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे EMG का पोस्ट का कोई लेना देना नहीं, कोई काम का नहीं। और उसमें मेरी जो पोस्ट है, मेरी वो पोस्ट सिर्फ इस कमरे में है। रश्मि CCCC है, वो AP हैं, वो PDC हैं, मैं PDG हूँ, डॉक्टर साहब भी PDG हैं। बाहर निकल के पूछो किसी से, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारी औकात हमारे काम से होती है। डॉक्टर सिक्ची चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन गोविंद मंत्री हैं, या ऑर्थोडेंटल सर्जन हैं। लक्ष्मीकांत जी मरियार बहुत अच्छे फर्नीचर के बिजनेस रखते हैं। डॉक्टर पंकज शाह बहुत अच्छे सर्जन हैं, वगैरह। कोई बोले तो लोग पहचान भी लेता है उनको। बाहर जाके बोलोगे कि ये EMG हैं और PDG हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और PAG हैं, क्या औकात है हमारी? हमारे काम करके दिखाना, तब हमारी पोजीशन लोगों की समझ में आती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, हमारी पोजीशन का गर्व हमारे सर में नहीं घुसना चाहिए। जिस दिन वो घुस गया तो आप सच्चे रोटेरियन भी नहीं रह जाओगे, बाकी तो बहुत चीज़ें अलग की तरफ रह जाती हैं। और हम लोग मुस्कुराना, बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। बहुत अच्छी कविता है, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हम हंसकर उठते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कि खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? दूसरों को खुश करने में अपना समय बिता देते हैं, दूसरे हमारे बारे में प्राउड फील करें, उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। याद करिए, यही फर्क अर्जुन में और कर्ण में था। अर्जुन करना चाहते थे क्योंकि करने की जरूरत थी, कर्ण इसलिए करना चाहता था कि लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं भी करता हूँ। इस फर्क को हम समझें। हमको करना है क्योंकि समाज को उसकी ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि समाज हम पे गर्व करे। अगर आप अच्छा काम करोगे, वो आपको कुछ करने की कोशिश ही नहीं, समाज अपने आप पे गर्व करेगा। और फेथ रखिए हर चीज़ में। मैं आखिरी चीज़ बोल के ख़त्म करता हूँ, बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए। अर्जुन की बात निकलती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बात कईयों ने सुनी होगी, सामने बैठे वाले तो अब रिपीट कर सकते हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उसके शस्त्र नहीं थे, शस्त्र चलाने की कला नहीं थी। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्ठा में थी। उसको पक्का विश्वास था कि उसके गुरु ने या उसके बुजुर्गों ने या कृष्ण ने कोई भी बात उसको जो बोली है, वो उसको पत्थर की लकीर मान के उस पर पूरा भरोसा करके या उसको फेथ करके वो करता था, क्योंकि ये मुझे बोली गई चीज़ है, मुझे मालूम है ये मेरे लिए गलत नहीं होगी। लेकिन वो हमेशा कृष्ण से प्रश्न पूछता रहता था, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं, क्यों नहीं करूं। और कृष्ण उसको उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन देते थे। और एक बार वो खुश हो जान लेता था कि ये बात ठीक है, तो बाहर निकल के उसको वो पूरी करता था। ये चीज़ हमारे बोर्ड में होनी चाहिए, यही चीज़ हमारी क्लब मीटिंग्स में होनी चाहिए, यही चीज़ हमारी क्लोज मीटिंग्स में होनी चाहिए। आपस में जितनी बहस कर सकते हो करो, आपस में गिरने वाले काम को चीर फाड़ के परख लो चारों तरफ से कि ये काम करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक बार निर्णय हो जाए कि ये काम ऐसे करना है, तो इस दरवाजे के बाहर निकल के किसी से ये मत बोलो, अरे मैं तो बोला था यार ये मत करो लेकिन ये कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अर्जुन की तरह प्रश्न पूछने की आदत रखो। अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे होते, अर्जुन को क्यूरियोसिटीज़ नहीं होती और अर्जुन के पास जिज्ञासा नहीं होती, तो आज हमको गीता जैसा महान ग्रंथ नहीं मिला होता। सो
आप में अगर जिज्ञासा है, आप में अगर उत्सुकता है, तो आप भी एक बहुत बड़े ग्रंथ के निर्माता हो सकते हो, या एक श्रवण तो करने की आदत आपकी हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और बहुत अच्छे से रोटरी निभाइए। रोटरी की पिन अगर आप पहनते हो तो वो आपके लिए गर्व की बात है। तो रोटरी भी पिन का भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसका ध्यान रखिए। ना उसको मलिन होने दीजिए, ना अपनी प्रतिष्ठा को मलिन होने दीजिए। रोटरी पे गर्व करिए और रोटरी को आप पे गर्व होने दीजिए। और मुझे आशा है कि आप लोग रोटरी को फिर से नई ऊंचाइयों पे लेके जाओगे। जलगांव ऑलरेडी बहुत अच्छे सभी क्लब्स मिलके काम कर रहे हैं, और मेरी कभी भी ज़रूरत है तो मैं तो हमेशा हूँ। अगली बार फिर से हम दोनों आएंगे, वो मेरा इंट्रोडक्शन देंगे, मैं भाषण दूंगा और फिर देखेंगे क्या होता है। और आई होप मैंने जो कुछ बोला आज आपको सब अच्छा लगा, आपने अपने मन में लिया और आप ध्यान से सुना। और बुरा लगा हो तो इस बार मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं तो मैं बोल देता हूँ हमेशा क्या कर लोगे मेरा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रम सभी को करना है, कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। दिलीप जी गांधी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। जलगांव के अंदर रोटरी में एक इतिहास निर्माण होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे इंडिया के अंदर या कहीं भी रोटरी इंटरनेशनल में यहाँ प्रोजेक्ट अभी तक हुआ नहीं होगा, पहली बार ये जलगांव में हो रहा है। और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जलगांव के अंदर 9 क्लब है आज, और 9 क्लब के अंदर करीब करीब 700-750 मेंबर हैं। और जलगांव क्लब सबसे पुराना, फिर मिड टाउन, फिर बाकी के सब क्लब। इतनी बड़ी संख्या में जब जलगांव के अंदर अगर रोटरी मेंबर है तो इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30% लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर अभी भी 70 से मतलब 65 से 70% लोग अभी भी एक दूसरे को रोटेरियन करके नहीं जानते हैं। और इसलिए इस बार हमारा खुशनसीब समझो या हम सबके लिए भाग्य की बात है कि हमारे जलगांव के प्रेसिडेंट एमपीओ नंदू भाई हमको मिले। और नंदू भाई को हमने जब एक प्रस्ताव दिया तो 1 मिनट में उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि जलगांव के अंदर जलगांव के 9 क्लब और जलगांव जिले के 9 क्लब मतलब 18 क्लब मिलकर जलगांव में एक दिन की एक मिनी कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की जाए। और ये पहला प्रोजेक्ट है। और इस आने वाले 18 सितंबर को यह मिनी कॉन्फ्रेंस जलगांव और जलगांव जिले के 18 क्लब मिलके एक दिन की आयोजित करने जा रहे हैं। उसके अंदर रोटरी से संबंधित सिर्फ 1 घंटा होगा, बाकी हमारे जीवन के ऊपर अलग अलग पहलू के ऊपर जो वक्ता आज तक जलगांव में आए नहीं या रोटरी में आए नहीं, ऐसे बड़े बड़े वक्ता उनको बुलाने का प्रयास चल रहा है। और इनॉग्रेशन के लिए हमारे जिसको पूरी इंडिया जानती है, उनको उनके कार्यों को प्रशंसा करती है, ऐसे नितिन जी गडकरी, इनसे बात चल रही है। लगभग 90% फिक्स है, सिर्फ 10% बाकी है, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। और दूसरा हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर सिक्ची और हमारे राजू भाई आज के जो चीफ गेस्ट हैं, ये प्रयास कर रहे हैं क्या आरआई डायरेक्टर को यहाँ बुलाया जाए। देखिए रोटरी कॉन्फ्रेंस में भी कभी आरआई डायरेक्टर आया ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया, पर जलगांव के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए इनका प्रयास है। क्या ये सब मुझे आनंद भाई ने जोड़ा है, तो मैं रॉयल्स क्लब से अपेक्षा रखूंगा क्या आप 2 साल पुराने क्लब हो, अभी पुराने नहीं, अभी तो आप अच्छे क्लब हो, तो 100%। और आप सभी भी मानसिकता बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोटेरियन इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जुड़े और हमारे बिजनेस में पारिवारिक स्नेह और हमारे एक दूसरे से अच्छे संबंध बने, इस कल्पना के साथ यह प्रोजेक्ट है। सभी से सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद।
पहले मैं कुछ 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि आज जो आपको वेलकम में पेन्स दिए हैं और यहाँ जो फाइल्स वगैरह बनवाई है, ये सब सीड वाली फाइल और पेन्स है। आप उसको यूज़ कीजिए और अपने ही घर के बगीचे में उसको डाल दीजिए ताकि वहाँ एक कुछ ना कुछ पेड़ आएगा और अपना पर्यावरण का भी साथ में रक्षण होगा। और मैं असिस्टेंट गवर्नर दिलीप भाई से भी ये विश्वास दिलाता हूँ उनको कि हमारा नया क्लब भी रहा, फिर भी रोटेरियन सब पुराने हैं इसमें, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मिनी कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेशन देंगे। ये मैं सभी क्लब के मेंबर्स की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ। डॉक्टर मृदुजा अमरेवाला, पीडीजी महेश मोकलकर, पीडीजी महेश मोकलकर, पीडीजी साबिर शाकिर, पीडीजी राजेंद्र भामरे, 11th डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गिरिशा जी ठाकरे, IPTC and AC member अश्विनी जी गुजराती, डिस्ट्रिक्ट। Ladies and gentlemen, once again a very good evening to all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Rotary Jalgaon Royals for this event to all dignitaries assembled here. A few words for our today's chief guest. A great leader, courage to fulfill comes from passion, not position. I would like to thank our beloved chief guest, EMGA, Investment Major Gift Advisor Zone 6, ये उसका फुल फॉर्म है EMGA का, PDG Rajesh Sharma. I also like to thank Assistant Governor Dilip Ji Gandhi. Many thanks to Innerville, PAP Rashmi Ji Sharma, और PAP का मुझे भी नहीं पता है. Next, I would thank Govind Ji Mantri, Lakshmikant Ji Maniyar, family members of President and Secretary, all Rotary and Innerville Club Presidents and Secretaries, Prasanna Ji Gujarati, Chandra Ji Gujarati, District ISO Preeti Ji Doshi, PDC Nutan Ji Kakkar, invited guests, friends, and club members, spouse and kids. पहले hands और heads था, हमने बोला तो immediately change कर देगा. Last but not least, print and digital media representative, MOC, event decorator, Bhageshri and her team. Knowingly and unknowingly, if anyone left in the list, also thankful on behalf of Rotary Jalgaon Royals. Thank you once again. Thank you. Today's attendance is 140 and our next meeting will be on 7th of August. New member elections with picnic. Thank you. Now I request to all of you, please stand up for national anthem.